ویلکم بیک۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، جی ایچ کیو راولپنڈی میں یوم دفاع شہداء کی پروقار تقریب ہوئی۔ تقریب میں حاضر سروس اور ریٹائرڈ فوجی افسران، شہداء کے لواحقین اور غازیوں نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ شہداء کے لواحقین کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ جعلی اور جھوٹا بیانیہ بنا کر ہیجان کی کیفیت پیدا کی گئی۔ غیر ملکی سازش ہو اور فوج خاموش رہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ فوج نے فیصلہ کیا ہے کہ سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ پاک فوج کی سیاست میں مداخلت غیر آئینی ہے۔ آپ کو بتائیں، جی ایچ یو راولپنڈی میں یوم دفاع شہداء کی پروقار تقریب ہوئی۔ تقریب میں حاضر سروس اور ریٹائرڈ فوجی افسران، شہداء کے لواحقین اور غازیوں نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ شہداء کے لواحقین کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ جعلی اور جھوٹا بیانیہ بنا کر ہیجان کی کیفیت پیدا کی گئی۔ غیر ملکی سازش ہو اور فوج خاموش رہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ فوج نے فیصلہ کیا ہے، سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ پاک فوج کی سیاست میں مداخلت غیر آئینی ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ سب لوگوں کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ ایک بار پھر آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں، جی ایچ کیو راولپنڈی میں یوم دفاع شہداء کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں حاضر سروس اور ریٹائرڈ فوجی افسران، شہداء کے لواحقین اور غازیوں نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ شہداء کے لواحقین کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ جعلی اور جھوٹا بیانیہ بنا کر ہیجان کی کیفیت پیدا کی گئی۔ غیر ملکی سازش ہو اور فوج خاموش رہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ فوج نے فیصلہ کیا ہے، سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ پاک فوج کی سیاست میں مداخلت غیر آئینی ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ سب لوگوں کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ معاشی مشکلات سے نکلنے کے لیے سیاسی استحکام لازم ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ آج آپ سے یوم شہداء کی تقریب سے بطور آرمی چیف آخری مرتبہ خطاب کر رہا ہوں۔ مجھے فخر ہے کہ 6 سال اس فوج کا سپہ سالار رہا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ شہداء پاکستان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ جو قومیں اپنے شہداء کو بھول جاتی ہیں وہ مٹ جاتی ہیں۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ غیر ملکی سازش ہو اور فوج خاموش رہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سب لوگوں کو ذہن نشین کر لینا چاہیے، صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، قصور تھانہ بی ڈویژن پولیس کی کارروائی، وسیم عرف کنگ ڈکیت گینگ کے 3 ارکان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان کے قبضے سے 1 لاکھ روپے نقدی، 5 مسروقہ موٹر سائیکلیں اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا ہے۔ ملزمان نے دوران تفتیش شہر میں 9 سے زائد وارداتوں کا انکشاف کیا ہے۔ ڈی پی او سید عمران کرامت بخاری نے اچھی کارکردگی پر تھانہ بی ڈویژن پولیس کو شاباش دی۔ گھوٹ کی رونتی کچا کا علاقہ عرصہ دراز سے نو گو ایریا میں تبدیل ہے۔ پولیس کی جانب سے ملزمان کے خلاف متعدد بار کارروائی عمل میں لائی گئی۔ مزید جانتے ہیں راہب سمرو کی اس رپورٹ میں۔ عرصہ دراز سے گھوٹ کی کچا کا علاقہ بنا نوگو ایریا خوف کی علامت بنے ڈاکو پولیس کی ناکامیابیوں کی اہم وجہ۔ ہمیشہ پولیس کی حکمت عملی کو بھانپ لینے والے کچا کے ڈاکو نے مسلسل پولیس کی کارروائیوں کو ناکام بنایا۔ شاید اسی کی وجہ کمزور حکمت عملی اور پولیس کے پاس جدید ٹیکنالوجی والے اسلحے کا نہ ہونا بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ کچا میں رہنے والے ڈاکوؤں کے پاس جدید ترین اسلحہ اور اسی کی سوشل میڈیا پر آئے دن نمائش، اسی کی وجہ صرف خوف و ہراس پھیلانا یا کوئی اور وجہ؟ عوام کی حفاظت پر معمور رونتی کچا کے بند پر چاق و چوبند پولیس کے جوانوں کا کہنا تھا کہ ہمارے جوان جو شہید ہوئے ہیں، اسی وجہ سے ہمارا ایس پی صاحب اور جوان جتنے بھی ہیں ہم ہوشیار ہیں، بلند ہیں۔ انشاءاللہ شہید زندہ ہوتے ہیں، اس کے سوا ہم تیاری میں انشاءاللہ ان قریب ان سے کچھ نہ کچھ کریں گے۔ کچا کے ڈاکوؤں کی سرپرستی آخر کون کرتا ہے؟ یہ سوال اپنی جگہ۔ پولیس کے اندر کی خبریں کچا کے ڈاکوؤں کے ذریعے
सोशल मीडिया पर बआसानी मिल जाती हैं। उसका सबूत ये भी है, गुज़श्ता दिनों 3 शहरियों के अगवा के बाद कच्चा में पुलिस की टारगेटिंग ऑपरेशन के दौरान 5 ऑफिसर्स की शहादत के बाद डाकुओं पर FIR और उसी की कापी को सोशल मीडिया पर डाकुओं ने वायरल कर दिया। हालांकि FIR की कापी मीडिया नुमाइंदगान ने मांगी, उन्हें नहीं दी गई। ऐसा तो नहीं कि कुछ पुलिस में भी काली भेड़ों की वजह से जवानों का शहीद होना और मुतअद्दिद बार डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशनों का नाकाम होना बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन पुलिस के जवानों के हौसले फिर भी बुलंद हैं। सर ये पैकेट जो है टी बंद PS अवस्थी जीवन शाह के नाम से है। कच्चे की सूरत हाल जो है वो हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जो ऑपरेशन की सूरत हाल है, जो कुछ रिएक्शन हम करेंगे वो इंशाल्लाह हमारी कामयाबी होगी। कच्चा के डाकू सिंध पंजाब के भीड़ ओकाड़ा में थाना शाहबूर पुलिस की कार्रवाई, बदनाम जमाना मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के कब्जे से 5 किलोग्राम से जायद चर्स बरामद कर ली गई। मजीद जानते हैं अदील रशीद की इस रिपोर्ट में। मुआशरे से मंशियात जैसी लानत को ख़त्म करने के लिए पुलिस फोर्स मुतहर्रिक। DPO उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद फुरकान बिलाल के अहकामात पर थाना शाहबोर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदनामे ज़माना रिकॉर्ड याफ्ता मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त शहजाद के नाम से हुई, जिसके कब्जे से 5 किलो से जायद चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज किया गया। ये बदनामे ज़माना मंशियात फरोश रिकॉर्ड याफ्ता है। नौजवान नस्लों को बर्बाद करने वाले इस मकरूह धंधे में अरसा दराज से मुलव्वस है। पुलिस ने मुखबर की इतला पर बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम को मंशियात समेत गिरफ्तार किया। DPO उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद फुरकान बिलाल का कहना है कि मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। मंशियात फरोश किसी भी रायत के मुस्तहिक नहीं, ऐसे लोगों का ठिकाना सिर्फ जेल है। मंशियात जैसी आदत से एक फर्द वाहद की जिंदगी नहीं बल्कि पूरे का पूरा घर मुतासर होता है। पुलिस फोर्स ऐसे अनासर के लिए सियालकोट थाना अगोगी के इलाके में पुलिस मुकाबला, पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। दीगर डाकू फरार हो गए। गिरफ्तार डाकू की शनाख्त वकास उर्फ काशू के नाम से कर ली गई है। मुलजिम के कब्जे से नकदी, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिलें और असलहा बरामद कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस हैं। मफरूर डाकुओं की तलाश जारी है। कामयाब कार्रवाई पर DPO फैसल कामरान ने पुलिस टीम को नकद इनाम और तारीफी असनाद देने का भी ऐलान किया है। लकी मरवत थाना नौरंग और थाना गोरीवाला के सरहदी इलाके में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान एक दहशतगर्द हलाक हो गया। शनाख्त वहीदुल्ला उर्फ उसामा के नाम से कर ली गई है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब था। ओकाड़ा में थाना A डिवीजन पुलिस की कार्रवाई, डकैत गैंग गिरफ्तार, 2 मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। मजीद जानते हैं अदील रशीद की इस रिपोर्ट में। पेशावर जिले इंतजामिया मिलावट माफिया के खिलाफ सरगर्म। असिस्टेंट कमिश्नर राव हाशिम और एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर जुनेद शाह का शोबा बाजार में गोदामों पर छापा। जाली मोबाइल ऑयल की पैकिंग पर 6000 अफराद को गिरफ्तार करके 8000 लीटर जाली मोबाइल ऑयल बरामद कर लिया गया। शोबा बाजार में 5 गोदाम सील कर दिए गए। डेप्यूटी कमिश्नर पेशावर का कहना है कि गिरफ्तार अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तहसील अलीपुर, थाना खैरपुर, सादात बस्ती सोंतरा में कब्जा माफिया का राज। 72 अफराद की गरीब शहरी की ज़रई अराजी पर कब्जा करने की कोशिश। मज़ाहमत पर सोंतरा खानदान पर राना बरादरी के मुसल्ला अफराद टूट पड़े। तशद्दुद से खातून समेत 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पंजाब सोशल सिक्योरिटी गवर्निंग बॉडी का 158वां इजलास सदारत सूबाई वज़ीर लेबर अंसर मजीद खान ने की। इजलास में कमिश्नर पंजाब सोशल सिक्योरिटी अम्बरीन साजिद समेत दीगर शख्सियात की शिरकत। इजलास में मुलाजमीन की बेहतरी के लिए कई अहम फैसलों की मंजूरी भी दी गई। सेहत सहूलत कार्ड प्रोग्राम को पंजाब सोशल सिक्योरिटी हस्पतालों में जारी रखने की मंजूरी भी दी गई। सोशल सिक्योरिटी हस्पताल मुल्तान रोड लाहौर को 400 बिस्तरों से 450 बेड्स पर अपग्रेड करने की मंजूरी भी दे दी गई है।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, फतेह जंग में डिप्टी कमिश्नर अटक हसन वकार चीमा का अराजी रिकॉर्ड सेंटर का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने अराजी रिकॉर्ड सेंटर की सफाई सुथराई और स्टाफ की हाजिरी समेत दीगर रिकॉर्ड चेक किया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को अवामी मसाइल बर वक्त हल करने के अहकामात जारी किए। आपको बताएं, फतेह जंग में डिप्टी कमिश्नर अटक हसन वकार चीमा का अराजी रिकॉर्ड सेंटर का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने अराजी रिकॉर्ड सेंटर की सफाई सुथराई और स्टाफ की हाजिरी समेत दीगर रिकॉर्ड चेक किया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को अवामी मसाइल बर वक्त हल करने के अहकामात जारी किए। फतेह जंग में थाना बहतर पुलिस की कार्रवाई। गैर कानूनी आटा स्मगल करने वाले मुलजिम हारिस खलील को गिरफ्तार कर लिया गया। आटे के 600 और चोकर के 80 थैले बरामद कर लिए गए। मुलजिम के खिलाफ फूड एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। ओकाड़ा में सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान है। अलीपुर मोहल्ला खान कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 16 से 18 घंटे हो गया है। LPG गैस और लकड़ियों की कीमतों में भी होशरबा इजाफा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पेशावर में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की जेर सदारत प्रोविंशनल सिक्योरिटी सेक्रेटेरिएट का अहम इजलास हुआ, जिसमें अदारे की फालियत से मुतल्लिक अमूर और पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि महकमा दाखिला के मौजूदा स्टाफ को प्रोविंशनल सिक्योरिटी सेक्रेटेरिएट के अमूर की अंजाम दही पर मामूर किया गया है। मालूमात के तेज़ रफ्तार तबादले और सेक्रेटेरिएट के अमूर की अहसन अंदाज में अंजाम दही यकीनी बनाने के लिए मुतल्लिका विफाकी एजेंसियों और महकमों के साथ बाकायदगी से इजलास मुनक्किद किए जा रहे हैं। वज़ीर आला महमूद खान ने प्रोविंशनल सिक्योरिटी सेक्रेटेरिएट को फाल बनाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स की काविशों को सराहा है। ननकाना साहब में नौ तैनात DPO सरदार मोहरान खान ने अपने ओहदे का चार्ज संभालिया। DPO ऑफिस आमद पर ज़िले पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने DPO को सलामी पेश की। DSP हेडक्वार्टर मसूद भट्टी ने DPO को फूलों का गुलदस्ता पेश किया और खुशामदीद कहा। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए DPO सरदार मोहरान खान का कहना था कि अवामी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और समाज दुश्मन अनासिर का खात्मा मेरी अव्वलीन तरजीह है। हैदराबाद में नाबीना अफराद की अंजुमन की जानिब से बच्चों के आलमी दिन के हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई, जिसके मेहमान खसूसी एडिशनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर हैदराबाद महबूब जमान थे। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खसूसी महबूब जमान ने कहा कि जदीद तालीम का हसूल हर बच्चे का बुनियादी हक है। बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, उनकी बेहतर तालीम और तरबियत हम सब की अहम जिम्मेदारी है। दानिश सियाल ने खिताब करते हुए कहा कि बच्चों का आलमी दिन मनाने का मकसद उनके हकूक से मुतल्लिक आगाही फराहम करना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि बच्चों को जदीद तालीम के जेवर से आरास्ता और उनकी बेहतर निगहदाश्त करना हम सब का फ़र्ज है। ओकाड़ा में पंजाब फूड अथॉरिटी ट्रेनिंग स्कूल के ज़ेर एहतमाम आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा को पंजाब फूड अथॉरिटी के कवायद और ज़वाबित से आगाह किया गया। खरीदारी करते वक्त लेबल को पढ़ने के तरीक़ाकार पर रोशनी डाली गई। कार्बोनेटेड मशरूबात के मुज़र असरात बारे भी आगाही दी गई। रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी नदीम अफजल चंद का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट भुलवाल ऑफिस का दौरा। शहरियों को दरपेश मसाइल हल करवाने की यकीन दहानी करवाई। इस हवाले से उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। भुलवाल में हमने आए थे और यहाँ देखा है कि जो औरतें जिनके अंगूठों के साथ फिंगरप्रिंट्स के नहीं जाते थे और तकरीबन 50-60 लाख रुपया आया हुआ है, लेकिन अब क्योंकि महकमे ने एक नई, मैं समझता हूँ ये मैडम शाजिया मरी की मेहरबानी है कि उन्होंने दोबारा एक्सपराइड किया इन चीज़ों को, और बिस्के में जो बेड सपोर्ट प्रोग्राम के दफातर में जो कुछ अब सहूलतें दी गई हैं दोबारा बायोमेट्रिक की भी, और उसमें काफ़ी लोगों के तो बायोमेट्रिक के मसाइल हो रहे हैं और जिनके नहीं होंगे उनके फिर फॉर्म फिल होंगे और उनकी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के साथ बैंक्स में उनको पैसे मिल जाएंगे। तो आज हम आए थे यहाँ पे और यहाँ फंक्शन हमने देखा है कि और सारे डिपार्टमेंट को भी काम करते देखा है। माशाल्लाह
सैकड़ों की तादाद में इस वक्त औरतें अपने मसाइल हल करवा रही हैं और जिनके बायोमेट्रिक नहीं मिलेंगे उनको बैंक से पैसे मिलेंगे और जल्द ही इंशाल्लाह बुलवाल में भी, घेरा में भी दफ्तर ओपन होगा। सऊदी अरब में होने वाली सकाफती और आर्टिस्टिक तकरीब बानू रियाज में रोशनियों के रंगारंग प्रोग्राम 6 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड समेटते हुए इख्तिताम पजीर हो गए। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में जारी होने वाले 17 रोज़ा फेस्टिवल नूर रियाज में प्लेस ऑफ लाइट के उन्वान से सबसे बड़े लाइट आर्ट वर्क ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किए। नूर रियाज सालाना फेस्टिवल में 40 से ज़ायद ममालिक के 130 सऊदी और बैनुल अक़वामी फ़नकारों के 190 से ज़ायद मुख्तलिफ आर्ट वर्क को पेश किया गया था। मीरपुर माथेलो में हिंदुओं के रूहानी पेशवा के त्यौहार में शिरकत के लिए भारत से ज़ायरीन की आमद तकरीबात 3 रोज़ तक जारी रहेंगी। आपको बताएं, मीरपुर माथेलो में हिंदुओं के रूहानी पेशवा के त्यौहार में शिरकत के लिए भारत से ज़ायरीन की आमद तकरीबात 3 रोज़ तक जारी रहेंगी। एक बार फिर आपको बताएं, मीरपुर माथेलो में हिंदुओं के रूहानी पेशवा के त्यौहार में शिरकत के लिए भारत से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। तकरीबात 3 रोज़ तक जारी रहेंगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।